For this LAN user there are two default gateway. Now what we will do, we will create a virtual gateway. It will be 192.168.1.100. To configure virtual default gateway, what we will do, I am going to use HSRP. So standby, I am using group number 1 and virtual IP will be 100. Okay. On R2 also interface Ethernet 1 by 1 and standby group number is 1 and IP address is, अगर यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर मेंशन नहीं करोगे तो क्या होगा, वो इस वाले राउटर से लिसन कर रहा था ना, याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था. ओके, सो आई गेस R1 इज ओके, R1 इज स्टैंड बाय, शो स्टैंड बाय ब्रीफ. ओके, इट विल बी इन एक्टिव स्टेट आई गेस. वेट करो. show standby brief. See, R2 is active router and R2 will be in, R1 will be in standby state. See, but what we want to configure R1 as a active router. What we can do, interface Ethernet 1 by 1, we can say standby 1, priority I am using 120, but by default preemption is disabled, so we will enable preemption also on R2 as well. Interface Ethernet 1 by 1, standby 1, print. Okay, now R1 will become active router. See, show standby, active बन चुका है ना ये, and R2 is standby router. Now who will give the ARP reply? See, we will configure IP address on this LAN user 192.168.1.10. Default gateway will be gateway will be 192.168.1.100. Now, if this LAN user want to communicate to the internet, destination MAC address will be what? MAC address of default gateway, and default gateway is 192.168.1.100. Now this LAN user will generate a ARP request, and who will give the ARP reply? Active router है ना, active router ARP reply देगा. ARP reply देगा कौन, कैसे पता चलेगा? show ARP में जहाँ पे एंट्री बनी हुई है, ये एंट्री कहाँ पे बनेगी? एक्टिव राउटर पे बनती थी, याद है? ये एंट्री यहाँ पे नहीं बनती थी. शो ARP यहाँ पे नहीं बनेगी. जो राउटर एक्टिव रहेगा उस राउटर पे वो एंट्री रहेगी, और वही राउटर क्या करेगा? ARP का रिप्लाई देगा. अगर कोई भी LAN यूजर ARP जनरेट कर रहा है फॉर डिफॉल्ट गेटवे फॉर 1.100, ठीक है ना, इतनी चीज. तो यहाँ पे हमने ये कल डिस्कस कर लिया था ये सारी चीजें. गेटवे कॉन्फ़िगर हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन माय LAN यूजर. (192.168.1.10) and gateway will be 1.100, and we will use a DNS server. There is a DNS server on internet. 8.8.8 is DNS server, so this IP address will be preferred DNS server for our LAN users. मतलब जब भी इन LAN यूजर्स ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है विद यूजिंग नेम, दे विल सेंड ए DNS क्वेरी टूवर्ड DNS सर्वर. जो भी आपका प्रेफर्ड DNS सर्वर है उसके पास में क्या भेजता था, वो एक DNS क्वेरी भेजता था ना, और वो क्या करेगा? DNS का रिप्लाई देगा. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर EIGRP प्रोटोकॉल ऑन R1. सी, दिस इज आवर नेटवर्क, दिस इज आवर एंटरप्राइज नेटवर्क. मान लेते हैं नेटवर्क बुल्स का नेटवर्क है ये. नेटवर्क बुल्स का एक एंटरप्राइज नेटवर्क है, एंड ऑन दिस नेटवर्क वी विल यूज EIGRP प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज द प्रीफिक्सेस. ओके, सो आई एम गोइंग टू इनेबल EIGRP. राउटर EIGRP से नो auto summary. By default auto summary is enabled, but in 15.0 it's by default disabled. So I am saying no auto summary, and network is 000.
मीन्स ऑल द इंटरफेसेस विल एडवर्टाइज्ड इनटू EIGRP. इस कमांड का मतलब पता है ना सभी को. नाउ व्हाट वी विल डू, वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर दिस इंटरफेस एज ए पैसिव इंटरफेस. जो हमारा राउटर का लैन इंटरफेस की तरफ, स्विच की तरफ जो इंटरफेस रहता है जहां पे मेरे लैन यूजर कनेक्टेड है, उन इंटरफेसेस को हम लोग हमेशा क्या बना देते हैं, पैसिव इंटरफेस. क्यों बनाते हैं वो? EIGRP के मैसेजेस फॉरवर्ड ना करे वो, है ना. सो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर पैसिव इंटरफेस टू ईथरनेट 1 by 1. On R2 also I am going to configure EIGRP, say no auto summary, and network is 000 and passive interface is Ethernet 1 by 1. On Edge router also we will configure EIGRP. Router EIGRP, say no auto summary, say network is 0.0.0.0. Fine. इतनी चीज क्लियर है. Now one more thing, we always configure a default route on Edge router pointed toward ISP. तो मैं Edge router पे एक default route भी configure कर देता हूँ, IP route 0.0.0.0.0.0. You can use exit interface or next hop address or combination of both exit interface and next hop address. डिफरेंस पता है ना सभी को, CCNP में पढ़ के आए हो ना. exit interface यूज करोगे तो क्या होगा, next hop address के केस में क्या होगा, है ना. ओके तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज कर लेता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो IP रूट, सी देयर इज ए डिफॉल्ट रूट टुवर्ड ISP राउटर. ओके, these LAN user want to communicate to the internet. Let's suppose 1.1.1 is google.com. तो ये अपना सारा का सारा डेटा ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करेंगे, R1 को फॉरवर्ड करेंगे ना. R1 is active router, right? But there is no information about 1.1.1.1. Now what we will do, we will redistribute that static default route into EIGRP. Router EIGRP 100, say redistribute static. Now these router will start to receive default route. So IP route, see there is a default route on R1 and on R12 as well. See डिफॉल्ट रूट आ गया ना इनके पास में. उसके बाद में हम लोगों ने एक और कॉन्फ़िगरेशन करी थी यहाँ पे, क्या क्या हाँ, यहाँ पे आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पैड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, याद है ना. अरे जो लास्ट क्लास में नहीं आया था वो वीडियो देख लेना लास्ट क्लास की, ठीक है. सो वी विल कॉन्फ़िगर पैड ऑन एज राउटर. लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे पैड कॉन्फ़िगर किया था और एज राउटर पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक. किन प्राइवेट आईपी एड्रेस को आपने ट्रांसलेट करवाना है पब्लिक में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक. सो टू डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक we will use access list. Okay, access list with permit statement and interesting traffic is what, any बोल दूं किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सोर्स आईपी कोई भी आए जिनको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है. प्राइवेट आईपी कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट आईपी कैन बी एनी आईपी एड्रेस. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कॉन्फ़िगर नेट. First of all, I am going to define interfaces, inside interface and outside interface. These interfaces will be our inside interface and this interface will be outside interface. So on Ethernet, IPNAT, say inside exit interface Ethernet 1/2, say IPNAT inside exit interface Ethernet 1/0, IPNAT is outside. इंटरफेसेस मेंशन कर दिए थे हमने. नाउ वी विल इनेबल नेट सर्विस. से IPNAT इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 इंटरफेस Ethernet 1/0 एंड से ओवरलोड. ये कमांड हमने कॉन्फ़िगर करी थी यहाँ पे. और इस कमांड का मतलब क्या बताया था मैंने,
इस कमांड का मीनिंग क्या है? इट विल नेट आईपी पैकेट। जब पैकेट किस इंटरफेस पे इन होगा, ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा आईपी पैकेट्स को। जब पैकेट किस इंटरफेस पे रिसीव होगा, जब इनसाइड इंटरफेस पे क्या होगा, इन होगा। कौन से आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा? सोर्स आईपी एड्रेस को। व्हेन पैकेट विल रिसीव ऑन दीज इंटरफेसेस, net will translate which IP address? Source IP address, and source IP address is our private IP addresses, right? और source IP कौन से, जो लिस्ट 10 में है, और लिस्ट 10 में क्या है, it can be any IP address, and it will translate these IP addresses, these private IP addresses into इस इंटरफेस के आईपी में क्या कर देगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। एंड ओवरलोड कीवर्ड का क्या मतलब था? इट विल कन्वर्ट पोर्ट नंबर ऑल्सो। सोर्स आईपी एड्रेस तो ट्रांसलेट होगा ही होगा, सोर्स पोर्ट नंबर भी क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अगर आप ये कीवर्ड नहीं दोगे तो सोर्स पोर्ट नंबर ट्रांसलेट नहीं करता था। ऐसे ही डिस्कस किया था हमने कुछ, है ना? ओके। अब ना इसमें एक और चीज है यार, हमने यहां पे क्या यूज किया है, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो किन केसेस में चेंजेस करेंगे वो बात करेंगे, ठीक है? पैट हम लोग एक और तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक और वे है हमारे पास में पैट कॉन्फ़िगर करने का, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, वो किन केसेस के अंदर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? Now I want to communicate from my LAN user to, I'm going to say ping space 1.1.1.1। कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना? पैकेट फ्लो क्या था हमारा, मैं रिकॉल कर रहा हूं यहाँ पे, आज कुछ स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए, तो मैं जल्दी जल्दी में रिकॉल करूंगा, टेंशन मत लेना। देखो यार, इस LAN यूजर ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, 1.1.1 से कम्युनिकेट करना है। सो दिस LAN यूजर विल इनकैप्सुलेट ए पैकेट। लेट्स सपोज इट्स IP, its MAC address is 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, and on this interface IP MAC address is 0F. Okay, and MAC address of this virtual IP is 01। ग्रुप नंबर से उठाता था ना, याद है ना? यहां तक सेम रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, दिस इज ग्रुप नंबर। ओके, नाउ व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम दिस LAN यूजर टू दिस google.com, this 1.1.1.1, this LAN user will encapsulate a packet and source IP address will be 192.168.1.10 and destination IP will be 1.1.1.1. In layer 2 header, source MAC address will be its own MAC address 0A and destination MAC address will be 01, MAC address of default gateway, और इसका default gateway 100 है ना, and there will be a TTL field also, it will be 128. If you are using Windows operating system then it will be 128. If there is Linux operating system then it will be 64. If there is Cisco IOS then it will be 255. तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट होगा ये, और ये फ्रेम आएगा किसके पास में, इस राउटर के पास में। नाउ राउटर विल एक्सेप्ट दिस फ्रेम ऑन लेयर 2 बिकॉज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज व्हाट 01। ये क्या चेक करेगा, जैसे ही फ्रेम रिसीव होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर विल ओपन लेयर 2 हेडर एंड इट विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज 01, और 01 मैक एड्रेस कहां पे एक्टिव है, इसी पे एक्टिव है ना। नाउ दिस router will accept this frame on layer 2. After that it will open layer 3 header and it will check that what is your destination IP address. What is destination IP address in this packet? It is 1.1.1.1.
To forward traffic toward 1.1.1, R1 look up its routing table. So there is a default route. अरे किसमें मैच हो जाएगा 1.1.1? डिफॉल्ट रूट में मैच हो जाएगा एंड इट विल फॉरवर्ड ट्रैफिक टूवर्ड 192.168.10.2 टूवर्ड एज राउटर एंड एग्जिट इंटरफेस इज व्हाट? दिस इज टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टूवर्ड 1.1.1. इट विल एग्जिट, इट विल ट्रांसमिट दिस पैकेट फ्रॉम दिस इंटरफेस. इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा? ये एग्जिट करेगा. बट इस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करने से पहले वो पैकेट किसको हैंड ओवर करेगा? पैकेट रीराइटर को. देयर इज ए पैकेट रीराइटर ऑन राउटर्स. ओके, तो पैकेट रीराइटर को हैंड ओवर करेगा एंड पैकेट रीराइटर विल मॉडिफाई दिस पैकेट. इस पैकेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा. वो क्या मॉडिफिकेशन होगी? इट विल डिक्रीमेंट इन टीटीएल वैल्यू बाय 1. और वो कौन कर रहा है? पैकेट रीराइटर. एग्जिट इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करने से पहले पैकेट किसको हैंड ओवर करेगा? पैकेट रीराइटर को. और पैकेट रीराइटर इस पैकेट में क्या करेगा? कुछ मॉडिफिकेशन. टीटीएल वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देगा आईपी हेडर में. इवन चेकसम फील्ड के अंदर भी क्या करेगा? चेकसम फील्ड भी दोबारा रिकैलकुलेट करेगा. आपको एक चीज पता है ना, और डिवाइस जब भी मेरा कोई पैकेट ट्रांसमिट करता है तो एक आईपी हेडर के ऊपर सीआरसी एल्गोरिदम रन करता है, एक चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करता है ना. अब सामने वाला डिवाइस, अब राउटर जब वो सेम पैकेट आगे ट्रांसमिट करेगा तो टीटीएल वैल्यू में क्या हो जाएगा? जब जो रिसीविंग एंड है उस पे तो फिर वो चेकसम वैल्यू कुछ और ही निकल के आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम टीटीएल वैल्यू क्या थी? 128. जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तब टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ और हो जाएगी. तो वहां पे वो फिर से सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा तो क्या होगा? वैल्यू मिसमैच नहीं हो जाएगी. पैकेट क्या कर देना चाहिए? डिस्कार्ड कर देना चाहिए. तो चेकसम वैल्यू में भी क्या करता है? वो रिकैलकुलेट करके उसमें मॉडिफाई करता है चेकसम वैल्यू, तुम्हारी आईपी हेडर की जो चेकसम वैल्यू है उसमें. एंड इट विल मॉडिफाई द लेयर 2 इंफॉर्मेशन, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. सोर्स मैक एड्रेस विल बी व्हाट? एग्जिट इंटरफेस मैक एड्रेस. सोर्स मैक एड्रेस always will be exit interface MAC address and destination MAC address will be what? Destination MAC address will be MAC address of this IP address. तो क्या ऐड कर देगा वो? 0D. पता है ना ये. और ये पैकेट आएगा किसके पास में? एज राउटर के पास में. नाउ एज राउटर विल ओपन लेयर 2 header. It will check that what is destination MAC address. Destination MAC address is its own MAC address, so it will accept on layer 2. After that it will open layer 3. What is destination IP? It is 1.1.1. To forward traffic toward 1.1.1, as router will look up its routing table now. So IP route. तो डिफॉल्ट रूट में मैच हो जाएगा. ट्रैफिक किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा? टूवर्ड ISP. तो ISP को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करेगा? इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा? वो एग्जिट करेगा. ठीक है, बट एग्जिट करने से पहले वो क्या करेगा इस पैकेट के अंदर? और यहाँ पे नेट भी तो कॉन्फ़िगर्ड है. क्या कॉन्फ़िगर किया हमने? पैट. और ये पैट क्या करेगा इस पैकेट के अंदर? ट्रांसलेशन करेगा. पैट में हमने क्या बोला था? दिस इंटरफेस इज अवर इनसाइड इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस इज अवर आउटसाइड इंटरफेस. और हमने यहाँ पे क्या बोला था? देखो, नेट करेगा आईपी पैकेट को जब पैकेट किस इंटरफेस पे इन होगा? इनसाइड इंटरफेस पे. विच आईपी एड्रेस इट विल ट्रांसलेट? सोर्स आईपी एड्रेस. एंड सोर्स आईपी एड्रेस कैन बी एनी आईपी एड्रेस जो एसीएल नंबर 10 में है. इट कैन बी एनी. और किस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा? 15.1.1.1 में. सो इट विल ट्रांसलेट योर source IP address. It will be 15.1.1.1. ओके. और अब ये इस इंटरफेस से पैकेट क्या करने वाला है? एग्जिट करने वाला है. बट एग्जिट करने से पहले इट विल मॉडिफाई द TTL value. Now it will decrement this TTL value by 1 and it will modify the layer 2 information also. Source MAC address will be 0E and destination MAC address will be 0F. Now it will forward this packet from this interface. इस इंटरफेस से पैकेट फॉरवर्ड करेगा वो. और हमने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है? ओवरलोड कीवर्ड यूज किया हुआ है ना. तो ये क्या कॉन्फ़िगर करने वाला है अभी? ये क्या मॉडिफाई करने वाला है? और हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट किसको कर रहे थे?
गूगल को कम्युनिकेट कर रहे थे। एक्चुअली आपने यहाँ पे क्या टाइप किया था, www डॉट, नहीं, आप बोलोगे http://1.1.1.1 और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो नॉर्मली क्या करता है ये, एक लेयर 4 हेडर भी तो ऐड होता है यहाँ पे। कौन ऐड करेगा वो, टीसीपी। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 80। वेबसाइट एक्सेस करो ना, 80 नंबर पोर्ट रहेगा। और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है, हम लोग वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे, फाइन। और नेट क्या कर रहा था इस पैकेट के अंदर, अब ट्रांसलेशन। सोर्स पोर्ट नंबर क्या था ये, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या था 80। नाउ पैट विल ट्रांसलेट योर सोर्स पोर्ट नंबर ऑल्सो। आपने ये क्या यूज किया यहाँ पे कीवर्ड, ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स इट विल ट्रांसलेट योर सोर्स पोर्ट नंबर एज वेल। तो ये क्या करेगा, दिस एज राउटर विल मेंटेन ए पैट, ये नेट ट्रांसलेशन टेबल, नेट ट्रांसलेशन टेबल, एक ट्रांसलेशन टेबल मेंटेन करेगा। उस ट्रांसलेशन टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, सोर्स आईपी एड्रेस was 192.168.1.10, उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, 15.1.1.1 में। एंड सोर्स पोर्ट नंबर इज 1024 एंड इट विल ट्रांसलेट दिस पोर्ट नंबर इनटू एनी पोर्ट नंबर, लेट्स सपोज 4001, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करने वाला है, ट्रांसलेट करने वाला है सोर्स पोर्ट नंबर 4001 कर देगा ये। और ये एंट्री कहाँ पे मेंटेन रखेगा, अपनी नेट ट्रांसलेशन टेबल में। और अब इस पैकेट को क्या करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा। पैकेट आ गया आईएसपी के पास में। नाउ दिस आईएसपी राउटर विल ओपन लेयर 2 हेडर, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज व्हाट, its own MAC address, so it will accept this frame on layer 2. After that it will open layer 3 header, destination IP address is 1.1.1.1। तो यहाँ पे एक सर्वर कनेक्टेड है तुम्हारा 1.1.1, इसकी तरफ पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, है ना। अरे मैंने इसी पे लूप बैक बना रखा है, तो राउटर क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आफ्टर दैट इट विल चेक दैट व्हाट इज, इट विल ओपन TCP हेडर एंड इट विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, इट्स पोर्ट नंबर इज 80। तो यहाँ पे इस पे क्या होगी, एक HTTP की सर्विस हमने क्या कर रखी होगी, इनेबल कर रखी होगी। नाउ आई एम गोइंग टू इनेबल HTTP सर्विस ऑन ISP राउटर। सो हाउ यू कैन इनेबल इट, से IP HTTP सर्वर। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे, कमांड एग्जीक्यूट करते इस पे HTTP की सर्विस क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। और इस पे पोर्ट नंबर 80 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड इट विल स्टार्ट टू लिसन पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80 को लिसन करना स्टार्ट कर लेगा। ये HTTP की सर्विस इनेबल्ड है ना, तो पोर्ट नंबर 80 को क्या करेगा, ये लिसन करेगा। देखो अगर कोई मशीन पे आप DNS की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो तो उस पे DNS का पोर्ट नंबर कौन सा, 53 नंबर पोर्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई मशीन पे DHCP सर्विस इनेबल कर रहे हो तो 67 नंबर पोर्ट ओपन हो जाएगा। 67 नंबर को लिसन करना स्टार्ट कर लेगा। और जैसे ही आप कोई मशीन पे HTTP की सर्विस आप इंस्टॉल कर रहे हो, इट विल ओपन पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 80 को लिसन करना स्टार्ट कर लेगा। समझ में आ रही है ना बात, ओके। तो ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और इसको हमने क्या बना रखा है, वेब सर्वर बना रखा है। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट होगी और ये क्या करेगा, अब रिप्लाई करेगा। ये अब क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई में क्या रहेगा, अब सोर्स डेस्टिनेशन हो जाएगा और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, सोर्स। नाउ सोर्स विल बी सी ऑन लेयर 4 हेडर इन TCP हेडर, सोर्स पोर्ट नंबर विल बी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी in layer 3 header, source IP address will be 1.1.1.1 and destination IP address will be 15.1.1.1. in layer 2 header, source MAC address will be exit interface MAC address 0F and destination MAC address will be 0E. और यहाँ पे TTL वैल्यू कितनी सेट करके भेजेगा, अब वहां पे विंडोज अगर इंस्टॉल्ड है, वो सर्वर आपका विंडोज पे है तो 128 सेट करके भेजेगा वो, ठीक है। और ये पैकेट किसके पास में आएगा, इट विल ISP विल फॉरवर्ड दिस पैकेट टूवर्ड एज राउटर।
Now as router will open layer 2 header first, it will check that what is destination MAC address. Destination MAC address is what? 0E. Now it will accept this frame on layer 2. layer 2 पे accept कर लेगा, layer 2 पे accept कर लेगा ना, ये destination MAC address इसी का है। और अब ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करेगा डेस्टिनेशन आईपी चेक करके। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है, एक नेट में ना एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा यहाँ पे, देखो ट्रांसलेशन कैसे होती है। जब पैकेट ये यहाँ पे हिट किया था इंटरफेस पे, तो इसने राउटिंग टेबल लुकअप पहले किया था, और इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर रहा था, एग्जिट कर रहा था। राउटिंग टेबल लुकअप करने के बाद में क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन करेगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है यहाँ पे नेट में, जब इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा तो पहले क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, देन क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा। सोर्स आईपी एड्रेस क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा पब्लिक में। समझ में आ रही है बात। और जब पैकेट आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा तो पहले ट्रांसलेशन करेगा, उसके बाद में राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। समझ में आ रही है बात। अगर पहले इसने ट्रांसलेशन नहीं करी तो लेयर 3 पे एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो लेयर 4 ओपन करेगा, पोर्ट नंबर 80 यहां पे ओपन ही नहीं होगा, पैकेट क्या कर देगा, डिस्कार्ड। समझ में आ रही है बात। अगर डेस्टिनेशन खुद है तो वो क्या कर लेता है, नॉर्मली राउटिंग टेबल पहले लुकअप कर लिया तो वो देखेगा डेस्टिनेशन 15.1.1.1 इट्स ऑन आईपी एड्रेस, सो इट विल एक्सेप्ट दिस फ्रेम ऑन लेयर 3। आफ्टर दैट इट विल ओपन लेयर 4 हेडर, इट विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 4001, और यहाँ पे पोर्ट नंबर ओपन होगा ही नहीं, तो ये इसको क्या कर देगा, नॉर्मली डिस्कार्ड कर देगा। तो पहले क्या होगा, पहले ट्रांसलेशन होगी। जब इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट कर रहा था तो आईपी एड्रेस कौन सा ट्रांसलेट हुआ था, सोर्स। और जब आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट करेगा इट विल ट्रांसलेट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करेगा। और जब भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करेगा, वो कैसे ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेशन टेबल चेक करके ट्रांसलेट करेगा। ये क्या चेक करेगा, यहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग क्या रहा है, देखो आईपी क्या लग क्या रहा है, 15.1.1.1। तो 15.1.1.1 को किस में ट्रांसलेट करना है, सो इट विल ट्रांसलेट दिस सोर्स आईपी एड्रेस इनटू 192.168.1.10 एंड इट विल ट्रांसलेट दिस पोर्ट नंबर इनटू 1024। समझ में आ रही है बात। इसमें ट्रांसलेट करेगा। नाउ दिस राउटर विल लुक अप इट्स राउटिंग टेबल। देखो इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट करेगा तो सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होगा, और आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट होगा तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। समझ में आ रही है ना बात। ओके, ट्रांसलेशन हुई। नाउ this router will look up its routing table. It will check that what is destination IP 192.168.1.10. Now it will look up its routing table to forward traffic 192.168.1.10. तो ये क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग है ना, या जो भी पाथ होगा उसकी तरफ क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा ना। लेट्स सपोज इसने पैकेट किसकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया, अब R1 की तरफ सेम पैकेट आएगा उसके बाद, और टीटीएल में भी तो डिक्रीमेंट होगा। सोर्स मैक एड्रेस विल बी, इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड R1, so source MAC address will be 0D and destination MAC address will be 0C. This interface MAC address, right? और ये पैकेट किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा, R1 की तरफ। अब R1 के पास में ये पैकेट आएगा तुम्हारा। Now R1 will open layer 2 header. It will check that what is destination MAC address 0C, so it's on MAC address 0C is its on MAC address, so it will accept this frame on layer 2. After that it will open layer 3 header. Destination IP address is what, 192.168.1.10. R1 will look up its routing table now to forward traffic toward 192.168.1.10. exit interface is, तो इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, एग्जिट करेगा। फिर से कुछ मॉडिफिकेशन होगी। नाउ टीटीएल वैल्यू विल बी 126, सोर्स मैक एड्रेस विल बी
01 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी 08 और ये पैकेट किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा और इसके पास में वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी. इट विल ओपन लेयर 2 हेडर. डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज its own MAC address, so it will accept this frame on layer 2. It will accept on layer 3 also because destination IP address is 192.168.1.10. After that it will open layer 4 header. Destination port number is what? 1024 और यहाँ पे 1024 पोर्ट नंबर क्या हो रखा होगा? ओपन. वो डेटा क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. TCP हेडर पड़ा हुआ है ना? ओपन स्टेट पता है ना? TCP बनाता है अपने पास में वो एक, पता है ना? एक TCP बना के रखता है अपने पास में एक सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का. पढ़ा हुआ है ना? वो नहीं पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के आना चाहिए था. ये समझ में आ गया? पैकेट फ्लो कैसा रहेगा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो. और जो ये वापसी में देखो, ये ट्रांसलेशन जब करेगा ना परफॉर्म, तो अपने पास में ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री रखेगा, है ना? और जब वापसी में डेटा ट्रैफिक आएगा उस नेट को क्या करेगा? वापस से अननेट करेगा. तो किससे करेगा? ट्रांसलेशन टेबल चेक करके करेगा. इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे. क्लियर है ये चीज? Yes, for all the packets. If you are using overload keyword. If you are not using this overload keyword, then it will not translate your port number. Okay? इतनी चीज क्लियर है? And by default, PAT is unidirectional. PAT is यूनिडायरेक्शनल. पैट यूनिडायरेक्शनल क्यों है? देखो यार, आपने यहां से बाहर कम्युनिकेट करना, आप बाहर कम्युनिकेट कर सकते हो ना? तो ये अपने पास में क्या बनाएगा? एक ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा. वापसी में जब ट्रैफिक आएगा तो ट्रांसलेशन टेबल चेक करके ही वापस से आईपी क्या करेगा? वो ट्रांसलेट करेगा ना. अगर ये टेबल नहीं होगी तो ट्रांसलेशन कर सकता है? नहीं कर सकता ना. Now we want to communicate from outside network to this line user 192.168.1.10. तो ये ट्रांसलेशन टेबल में कोई एंट्री होगी क्या? ट्रांसलेशन टेबल में कब एंट्री बनेगी? जब आप लोग इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड नेटवर्क में क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे, तब ट्रांसलेशन टेबल बनेगी. सी देयर इज ए वन मोर यूजर, इट्स आईपी एड्रेस इज 192.168.1.20. इस आईपी एड्रेस की यहाँ पे कोई एंट्री है? नहीं है ना. नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम ISP टू 1.20. पहली बात तो ये यहाँ पे इधर कोई, अब देखो वापसी में पहले जब डेटा ट्रैफिक आ रहा था तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के आ रहा था? 15.1.1.1 लग के आ रहा था ना. तो उसको किस में ट्रांसलेट कर रहा था? इसमें. नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट, यू आर गोइंग टू जनरेट ए ट्रैफिक. इन दैट ट्रैफिक योर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज व्हाट? 15.1.1.1. डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 15.1.1.1 होगा ना. जैसे ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, इस ट्रांसलेशन टेबल में कोई एंट्री होगी उसके लिए? होगी नहीं. तो उसको ट्रांसलेट करेगा? कर ही नहीं सकता उसको कभी ट्रांसलेट. वो क्या कर पाएगा? क्या ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा ना यार, अगर इस टेबल में एंट्री नहीं है. पहले वो क्यों वापसी में जब डेटा रिसीव हो रहा था वापस से ट्रांसलेट कर पा रहा था? टेबल में एंट्री पड़ी हुई थी, टेबल में पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चेक करके वापसी में ट्रांसलेट कर रहा था ना. अब अगर आप बाहर से कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल में तो कोई एंट्री होगी नहीं ना, तो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता. तो आप बाहर से अपने इनसाइड नेटवर्क में कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे. किस केस में? पैट के केस में. ठीक है. ओके, एक और मैं यहाँ पे आपको केस बता देता हूँ. हम लोग नेट एक और टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अभी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, पैकेट फ्लो देख लेते हैं पहले हम लोग. ठीक है, पैकेट फ्लो क्या रहेगा? आई एम सेइंग http://1.1.1.1. ये राउटर क्या हो गया? वो एक्सेस हो गया. पैकेट फ्लो देखें क्या रहेगा? आई एम गोइंग टू कैप्चर this link, not this link, this link
एंड दिस लिंक। ये मैंने दोनों लिंक क्या किए, कैप्चर किए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू open HTTP. I am going to access this 1.1.1.1 ISP पे लूप बैक है ये, और ISP की मैं HTTP की सर्विस क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ना, ये ISP राउटर क्या हो गया आपके पास में, एक्सेस हो गया। पैकेट फ्लो क्या है वो देख लेते हैं। देखो यार, सोर्स आईपी एड्रेस इज दिस। देखो इसने एक पैकेट इनकैप्सुलेट किया, लेयर 4 को हैंड ओवर किया। सोर्स पोर्ट नंबर इज रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 80 पोर्ट नंबर, यही है ना। और यहाँ पे देखो इसने सोर्स आईपी एड्रेस वही अटैच किया था, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज, एंड टीटीएल वैल्यू इज 128 की है। मैं अपनी मशीन से डेटा ट्रैफिक क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनेट कर रहा हूँ। मीडिया पे ट्रैफिक आया, और लेयर 2 पे देख लो, सोर्स मैक एड्रेस विल बी, लैपटॉप का मैक एड्रेस रहेगा ना ये, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, देखो लास्ट में क्या है, 0A है ना। और जब इस पैकेट को इस इंटरफेस से एग्जिट करेगा ना, दिखाऊं, ये देखो, जब आगे इस पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है ये, अरे ये तो डीएनएस क्वेरी है, उसने कैप्चरिंग स्टॉप कर दी थी क्या, आई थिंक कैप्चरिंग उसने स्टॉप कर दी थी उस टाइम। मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा कैप्चरिंग करता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, इस लिंक को भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। दोबारा कैप्चरिंग करता हूँ, स्टार्ट कैप्चर, और इस लिंक को भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, स्टार्ट कैप्चर, ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा फिर से डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा वो कुछ। स्टॉप कैप्चरिंग, और इसमें भी आ जाओ, स्टॉप कैप्चरिंग, ठीक है। अब पैकेट फ्लो देख लेते हैं, जो हमने डिस्कस किया था वही है। जब इस लैन यूज़र ने डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट किया था, तो ये देखो, ये था वो डेटा ट्रैफिक। जब इस लैन यूज़र ने डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट किया था अपना, वो क्या कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था वेबसाइट के लिए ना, किससे, 1.1.1.1 से। Source port number is random port number and destination port number is well known port number, that is port number 80. Source IP address is its own IP and destination IP address is 1.1.1. मैं मैक एड्रेसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैक एड्रेसेस पता है कौन से रहेंगे हमें पहले से ही, ठीक है। नाउ दिस राउटर विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड एज राउटर, एंड एज राउटर विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड ISP। तो इस लिंक से मैं वापस से कैप्चर कर रहा हूँ। इस लिंक पे जो डेटा ट्रैफिक जा रहा है वो कैसा जा रहा है, देखो इसने यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस वही वाला मैसेज है ना, ये गेट मैसेज है। गेट मैसेज किस लिए भेज रहा है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए क्या भेज रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो अब उसके अंदर देखो सोर्स IP एड्रेस क्या हो गया, ट्रांसलेट, क्या हो गया, 15.1.1.1
1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? वही है, सेम है। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब जब वो वापसी में रिप्लाई देगा, 1.1.1 की रिप्लाई आ रही है ये। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या सेट करके भेज रहे हैं? 15.1.1.1। और वो टीटीएल वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा है? 255। क्यों 255 लगा के भेज रहे हैं? क्यों? वहां पे सिस्को आए हुए है ना। और अब ट्रैफिक जब ये राउटर एज राउटर जब इसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो मैं इस वाले लिंक को कैप्चर किया हुआ है, उसको ओपन करता हूं। ये कौन सा था? ये था आई थिंक, ये रहा। वापसी में देख लो आईपी क्या हो रहे हैं। वापसी में आईपी वापस से क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया ना। किसमें ट्रांसलेट कर दिया? 192.168.1.10 को। आईपी लग के क्या आ रहा था? डेस्टिनेशन 15.1.1.1। उसको वापसी में किसमें ट्रांसलेट कर दिया? 192.168.1.10 में। और वो आईपी वही है, देखिए। समझ में आ रही है बात? अरे ये वाला पैकेट नहीं है, सॉरी। सोर्स क्या होना चाहिए? 1.1.1 होना चाहिए ना। आई थिंक पैकेट है ना तुम्हारा इस वाले लिंक से कैप्चर हो रहा है। एक काम करो, आई थिंक रिवर्स पाथ इस वाले पाथ से जा रहा है। इसमें वो रिवर्स पाथ का ट्रैफिक मुझे दिखा नहीं रहा है। लोड बैलेंसिंग हो रही है। स्टार्ट कैप्चरिंग। इस लिंक को कैप्चर नहीं करेगा ये। मैं काम कर लेता हूँ, इस वाले लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ। इस वाले पे दिखा देगा तुम्हें, 3rd नंबर कैप्चर में दिखा देगा। रिवर्स पाथ हमें, ये देखो रिवर्स पाथ इसी में दिखा रहा है हमें। मैं वापसी में दोबारा ट्रैफिक ओरिजिनेट करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया और ये देखो 1.1.1 जो है वो क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है। सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो गया? 80 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज, सोर्स आईपी एड्रेस इज 1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज। वापसी में ट्रांसलेट हो रहा है ना तुम्हारा। समझ में आ गई बात? और एज राउटर विल मेंटेन ए शो नेट ट्रांसलेशन टेबल। ठीक है। अरे वो ट्रांसलेशन टेबल बन रही है ना यहाँ पे, और इसी टेबल को चेक करके वापसी में नेट को क्या करेगा? वो अननेट करेगा। ठीक है। देखो यार, इस राउटर को, आईएसपी राउटर को हम लोग किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? एचटीटीपी के थ्रू, है ना। आईपी से एक्सेस कर रहे हैं उसको। और ये पूरा कंप्लीट आपके पास में राउटर एक्सेस हो चुका है। देखो आप यहाँ पे मॉनिटर द राउटर पे आप क्लिक करते हो ना, आपके पास में राउटर ओपन हो चुका है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है बताओ? उसका ये प्रिविलेज मोड है। दिस इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस कंप्लीट राउटर को आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद यूजिंग एचटीटीपी। देखो अब इस राउटर पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल्ड नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको ना, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल करना है राउटर पे बताओ? वी विल क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन मोड and we will run a command here like router EIGRP 200 और 500। वहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल चल गया होगा, दिखा देता हूँ। IP प्रोटोकॉल, सी EIGRP प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड ऑन ISP राउटर। और आपने क्या करना है? उस पर कोई नेटवर्क कमांड चलानी है। से नेटवर्क, आई एम सेइंग इट्स नेटवर्क 8.8.0.0.0। Now it will advertise this 8.8.8 prefix on this as router. Show IP on this ISP router. See क्या करना है और बताओ? क्या रिप इनेबल करूं? ये लो राउटर रिप प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड ऑन ISP राउटर। सी शो IP प्रोटोकॉल। रिप इनेबल नहीं कर रहा क्या वो? रिप इनेबल नहीं कर रहा वो। एक काम करो, इस पे क्लिक करता हूं मैं दोबारा। राउटर से राउटर रिप होना तो चाहिए। शो IP प्रोटोकॉल नहीं, रिप की सपोर्ट नहीं है। आई एम गोइंग टू इनेबल EIGRP OSPF राउटर OSPF 100।
on ISP router see OSP 100। क्या करना है, कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप। और यहाँ पे देखो आप, मैं होम पे गया, होम पे जाके प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ दिखाएगा। शो प्रोसेस CPU के अंदर आपको इसका सारा CPU का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। लाइक लास्ट 5 सेकंड के अंदर उसका CPU यूजेस कितना था, 4%। लास्ट 1 मिनट में CPU यूजेस कितना था, 3%। लास्ट 5 मिनट में CPU यूजेस कितना था, 2%। ठीक है, मेमोरी दिखाएगा। शो बफर में आपको इसकी बफर मेमोरी दिखाएगा तुम्हें ये। और शो इंटरफेस पे आप क्लिक करोगे तो इसके सारे इंटरफेसेस दिखा रहा है तुम्हें। देखो हर एक इंटरफेस की डिटेल शो कर रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे मैं क्लिक करता हूँ, आईएसपी के सारे इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, इंटरफेसेस का स्टेटस क्या है। मतलब जो आप कॉन्फ़िगरेशन आप आईएसपी राउटर पे टेलनेट के थ्रू कर सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस करके कर रहा हूँ। आप कंप्लीटली उस राउटर को एचटीटीपी के थ्रू क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इतनी चीज क्लियर है। एंड अभी हम लोग इस राउटर को जो एक्सेस कर रहे थे वो किसके थ्रू एक्सेस कर रहे थे, आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। बट वी वांट टू एक्सेस दिस राउटर विद यूजिंग नेम, इसको नेम से एक्सेस करना है। सो हु विल प्रोवाइड द नेम, डीएनएस सर्वर। तो मैं आईएसपी राउटर पे गया, आई एम गोइंग टू इनेबल डीएनएस सर्विस। सो से आईपी डीएनएस सर्वर। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे ये मशीन क्या बन जाएगी, ये राउटर क्या बन जाएगा, डीएनएस सर्वर। And which IP address you want to convert, which FQDN name, see there is a FQDN name. Your DNS server always convert FQDN name to IP address, and FQDN name is like isp.nb.com. This is your host name and this is your domain name. The combination of host name and domain name is FQDN name. So DNS server can convert your FQDN name to IP address. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी फिलहाल, I'm going to give a name to 1.1.1.1 on ISP router. Say IP host www.google.com to which IP address, 1.1.1.1. Now this DNS server will start to convert this www.google.com to this 1.1.1 IP address. तो इसको क्या चाहिए अभी, DNS सर्वर का IP चाहिए। We already assigned a IP address as a DNS server 8.8.8.8 to this LAN user. तो मैं अब चलता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, I'm going to type www.google.com। तो अब वही राउटर आपका किससे एक्सेस हो रहा है, नेम से एक्सेस हो रहा है, राउटर एक्सेस हो रहा है एक्चुअली। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो आप एचटीटीपी के थ्रू कोई भी आप राउटर को आप मैनेज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। नाउ देखो लास्ट क्लास में ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नेट के बारे में डिस्कस किया, पैट हमने डिस्कस किया, और जो हमने पैट कॉन्फ़िगर किया था उसको हम लोग एक और मेथड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या देखो, मैं ये पैट की कॉन्फ़िगरेशन हटा दूं। मैंने एक तो एक्सेस लिस्ट बनाई थी, कौन सी, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और एक नेट स्टेटमेंट दी थी, इसको मैंने नो कर दिया मैंने, ठीक है। देखो आप नेट और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, मैं एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, फिर से कोई भी नंबर दे सकते हो, और इस एक्सेस लिस्ट में उस आईपी को हम लोग परमिट करवा देंगे जो हमने ट्रांसलेट करवाने हैं। हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या रहेगा, जिसको हमने ट्रांसलेट करवाना है। तो हम लोग एक एसीएल बनाएंगे, और इस एसीएल को हमने किस में ट्रांसलेट करवाना है, हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक पूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पूल, और पूल में वो आईपी एड्रेस रहेगा जिस आईपी एड्रेस में आपने उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सो आईपी एड्रेस विल बी 15.1.1.1 स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज एंड एंड आईपी एड्रेस रेंज।
जब भी हम लोग पैट कॉन्फ़िगर करते हैं, इन दैट केस वी ऑलवेज यूज ए सिंगल आईपी एड्रेस। तो जो एंड आईपी एड्रेस की रेंज रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब इन आईपी एड्रेसेस को मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा किस में, इस पूल में, ठीक है। तो दो मेथड है हमारे पास में, वो दूसरा मेथड बता देता हूं और दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ACL नंबर 10 से परमिट आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक इज दिस। कुछ भी बोल सकते हो ना, एनी भी हो सकता है। तो मैंने इन आईपी एड्रेसेस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए पूल, आईपी नेट पूल, पूल नेम इज एनी, लाइक आई एम गोइंग टू गिव नेम NB। स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज, it's 15.1.1.1, and IP address again it's 15.1.1.1, because we are having only a single public IP address on this interface। इस इंटरफेस पे एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है ना। एंड आफ्टर दैट से नेट मास्क, सबनेट मास्क इज व्हाट, 255.255.255.252। ये हमने क्या बना लिया, पूल। नाउ आई एम सेइंग आईपी नेट इनसाइड, जब पैकेट किस इंटरफेस पे हिट करे, इनसाइड इंटरफेस पे हिट करे। ट्रांसलेट विच आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस इन विच, एंड सोर्स विच आईपी एड्रेस विच इज इन ACL नंबर 10, और किस में ट्रांसलेट कर दे, पूल, पूल नेम इज NB, और NB पूल नेम में कौन सा आईपी है हमारा, 15.1.1.1 है, उसमें ट्रांसलेट कर देगा। एंड से ओवरलोड कीवर्ड। तो ये दो मेथड है हमारे पास में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा अभी। पैट ही है ये हमारा। स्टिल दिस LAN यूजर कैन कम्युनिकेट टू इंटरनेट। सी www.google.com वेबसाइट एक्सेस हो रही है ना। मान लो ये देख लो, ये पैट आपका ट्रांसलेशन कर रहा है। आई एम गोइंग टू एज राउटर्स यू IP नेट ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है ना। अब डिफरेंस क्या है वो बात करते हैं। देखो यार, इस इंटरफेस पे जो आईपी है वो कौन सा है, पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी कौन प्रोवाइड करवाता है, ISP प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो पब्लिक आईपी है ना, हमें कैसे मिल सकता है ISP से। देखो नॉर्मली पब्लिक आईपी जो हमें ISP से मिलता है ना, वो डायनामिकली मिलता है। कैसे मिलता है, डायनामिकली। ISP पे क्या रहेगा, एक DHCP सर्वर रहेगा, वो क्या करेगा, डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। एक होता है डायनामिक पब्लिक आईपी और एक होता है स्टैटिक पब्लिक आईपी। जो डायनामिक आईपी मिलता है ना आपको ISP से, उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता ISP को अलग से, वहां पे हमें सिर्फ इंटरनेट के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। देखो मैं इंटरनेट का कनेक्शन लूंगा ना, जो आप घरों में अपना जो इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, मोडेम पे एक लाइन आ रही होती है, उस पे एक पब्लिक आईपी मिलता है, और वो जो पब्लिक आईपी होता है वो कौन सा होता है, डायनामिक पब्लिक आईपी होता है। वो चेंज होता रहता है। हो सकता है आज आपने ये राउटर ऑन किया, आज आपको 15.1.1.1 मिला है, ये राउटर आप रिस्टार्ट करो, हो सकता है बाद में आपको 16.1.1.1 मिल रहा हो। तो जो डायनामिक पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात। और एक होते हैं स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ISP हमें क्या करेगा, एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, और वो हमें यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स सपोज हमें एक स्टैटिक पब्लिक आईपी मिल गया 15.1.1.1। यहाँ पे आप ये आईपी क्या करोगे, मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे, DHCP से नहीं मिलेगा। इस इंटरफेस पे आप आईपी दो मेथड से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना, विद यूजिंग DHCP एंड मैनुअली। समझ में आ रही है बात। तो दो मेथड है हमारे पास में। और स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस है अगर आपके पास में, ये हमें ISP पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, एंड वी विल कॉन्फ़िगर दिस आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस मैनुअली। और ये आईपी क्या रहेगा, फिक्स। ये अब कभी आईपी चेंज नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो हम लोग किससे एक्सेप्ट करेंगे आईपी, DHCP से। वो आईपी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है ना। बट इस स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। इंटरनेट के चार्जेस तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा आपको अलग से भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस के। अराउंड आपको फॉर 1 ईयर अराउंड 1000 रुपीज पे करना पड़ता है एक सिंगल स्टैटिक पब्लिक आईपी का। समझ में आ रही है बात। ओके ठीक है। अब बात करते हैं
ये मैंने दो मेथड बताए, एक तो ये वाला मेथड पूल वाला, एक दूसरा मेथड बताया था, है ना। कौन सा मेथड कब यूज करेंगे वो बता देता हूं। देखो, अगर मैं पूल वाला मेथड यहां पे यूज करता हूं और आईएसपी से इसको आईपी कैसे मिल रहा है, डायनामिकली। आज मिला इसको 15.1.1.1, मैंने पूल में रख लिया कि हाँ भाई ये जब भी मेरे आईपी एक्सेस लिस्ट में जो भी आईपी है उनको किस आईपी में ट्रांसलेट कर दे, पूल में जो आईपी है, पूल में आईपी कौन सा है 15.1.1.1 है, एक सिंगल आईपी, उसमें ट्रांसलेट करता रहेगा। अब कल को हमारा राउटर रीस्टार्ट हो जाता है और उसको कोई और आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है आईएसपी के डीएचसीपी सर्वर से, अब उस केस में क्या रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, वो बार बार किस में ट्रांसलेट करेगा, इसमें ट्रांसलेट करेगा। और आईएसपी ने तो हमें कुछ और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाया है, लाइक इस बार 16.1.1.1 प्रोवाइड करवा दिया है, तो बार बार पूल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको आईपी कौन सा मिला हुआ है आईएसपी से, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, उस केस में तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पूल यूज कर सकते हैं। अगर आपको आईपी कैसा मिला है, डायनामिक पब्लिक आईपी जो चेंज होता रहता है, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले वाला मेथड कौन सा था, इंटरफेस का नंबर नेम मेंशन कर दोगे, उस इंटरफेस पे जो भी आईपी रहेगा उसमें क्या करता रहेगा, वो ट्रांसलेट करता रहेगा। समझ में आ गई बात है। दूसरा मेथड क्या था, एक तो ये मेथड है मेरे पास में, और दूसरा मेथड क्या था, आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो लिस्ट 10 में हो उसको ट्रांसलेट कर दे। एक तो हमारे पास में ये मेथड हो गया पूल, किस में, एनबी में, और एक कीवर्ड यूज कर ले ओवरलोड। एक तो ये था पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या था, यहां तक सेम रहेगा, देन इंटरफेस इथरनेट, विच इथरनेट 1/0 एंड से ओवरलोड। तो इस इंटरफेस पे जो भी आईपी रहेगा, जो एसीएल नंबर 10 में जो भी आईपी लग के आ रहे होंगे, उस इस इंटरफेस पे जो भी आईपी रहेगा, आज 15 मिल रहा है तो उसमें ट्रांसलेट कर देगा, 16.1.1.1 मिल रहा है तो उसमें ट्रांसलेट कर देगा। समझ में आ गई बात, इतनी चीज क्लियर है। ये था पैट। अब बात करेंगे हम लोग क्या, और पैट हम लोग किस केस में यूज करते हैं, पैट हम लोग किस केस में यूज करते हैं बता दो। When you want to communicate from your inside network to outside network, or you can say if you want to communicate from your inside private network to your public network, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पैट। बट पैट के केस में आप बाहर से इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे फिर, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट इज बाय डिफॉल्ट बाय डायरेक्शनल। मतलब आप इनसाइड से भी आउटसाइड में कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आउटसाइड से भी इनसाइड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टैटिक नेट देख ले पहले हम लोग। एक काम करते हैं, देखो आप इस लैन यूजर से, मेरे लैपटॉप से आप 8.8.8 को कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, रिप्लाई आ रहे हैं। पिंग स्पेस 1.1.1 को कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिप्लाई मिल रहा है ना। बट मैं आउटसाइड नेटवर्क से इसको मैं कम्युनिकेट करवा के देखूं कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्या। मैं आईएसपी पे चलता हूं, मैं पिंग करता हूं 15.1.1.1 को, तो ये कौन रिप्लाई दे रहा है, एज ए राउटर रिप्लाई दे रहा है, ना कि ये दे रहा है। मैं काम करता हूं, मैं यहां से पिंग करता हूं 192.168.1.10 को, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो आप आउटसाइड से अपने इनसाइड नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकते विद यूजिंग पैट, ठीक है। अगर आउटसाइड नेटवर्क से अगर आपके इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं,
स्टैटिक नेट, तो स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। एज राउटर पे जाता हूँ और मैं वो नेट डिसेबल कर रहा हूँ। डू शो रन पाइप सेक्शन आईपी नेट। ये इन कमांड्स को मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। पहले इसको हटाओ यहाँ से। मैं इस कमांड को भी रिजेक्ट करूं। अब कोई नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। शो रन पाइप सेक्शन आईपी नेट, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ इनसाइड इंटरफेस और आउटसाइड इंटरफेस है। नाउ व्हाट वी विल से, we will configure a static net on this as router. If your source IP address is this, it will translate this IP address into, let's suppose 15.1.1.1, or we can do one thing, we are using 15.1.1. like 10. I'm going to change IP addresses on this segment. I'm using network of 15.1.1.1 255.255.255.0 on /24. On ISP also we are using interface Ethernet 1/0. IP address is 15.1.1.2 255.255.255.0 on /24. I'm using IP addresses here on /24. ओके, और मैं यहाँ पे एक स्टैटिक नेट की एंट्री कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। जब भी ये IP लग के आता है सोर्स, उसको किस IP में ट्रांसलेट कर दे, 15.1.1.10 में ट्रांसलेट कर दे। एंड दिस स्टैटिक एंट्री विल रिमेन इन नेट ट्रांसलेशन टेबल ऑलवेज, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक इज सोर्स इज 50, ट्रांसलेट कर दे किस में, 10 में। बस एंटर प्रेस करो यहाँ पे। शो IP नेट ट्रांसलेशन, ये एंट्री यहाँ पे हमेशा रहेगी। और अब आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू विल डू when you will communicate from this ISP to this LAN user, see how you will communicate. You will access which IP address, see you want to communicate from this server to this LAN user. So your source IP address will be 1.1.1 and destination IP address will be, you will say 15.1.1.10. जैसे ये पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगा, किस इंटरफेस पे हिट कर रहा है, आउटसाइड इंटरफेस पे, इट विल ट्रांसलेट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो अगर ये आईपी लग के आ रहा है तो इसमें किसमें, इसको किसमें ट्रांसलेट कर देगा, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये राउटिंग टेबल लुकअप करके आगे पैकेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। देख लो, सॉरी 15.1.1. रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, क्या रह गया? Show IP route on ISP router. See, on ISP router there is a prefix toward this. I'm saying ping space 15.1.1.10. हाँ? क्या हुआ? एक मिनट एज राउटर पे ट्रांसलेशन टेबल है ही नहीं। शो IP नेट ट्रांसलेशन क्लियर IP ट्रांसलेशन तो हो रही है क्या? ट्रांसलेशन तो हो रही है, ट्रांसलेशन तो हो रही है।
हैं किस पे? एक मिनट IP नेट IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10 और लैन यूजर को IP क्या दिया हुआ हमने? यही तो है। ट्रांसलेशन क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है? वन डॉट 10 हाँ जी एक मिनट। टाइप इंटरफेस ब्रीफ इथरनेट 1/0 टाइप इंटरफेस ब्रीफ इथरनेट 1/0 शो रन इंटरफेस इथरनेट 1/0/24 पे है शो रन इंटरफेस। हाँ क्या? फिर क्या हुआ? टेन लिया ना हमने या 1 लिया? मैंने क्या लिया था? 10 ही तो लिया था। 10 ही तो लिया था। तो फिर क्या हुआ? मैं पूरा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ ना। वो ये लो IP नेट इनसाइड सोर्स जो लिस्ट किस में हो? सॉरी सोर्स स्टैटिक 192.168.1.10 और इसको किस में ट्रांसलेट कर दे? 1 में ट्रांसलेट कर दे। आगे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमें। नाउ आई वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम दिस ISP टू 15.1.1.1। नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रही है। एक काम करें, एज राउटर को रीस्टार्ट कर लूं मैं? प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ट्रांसलेशन तो कर रहा है ये। शो IP नेट ट्रांसलेशन तो परफॉर्म कर रहा है ये। एक काम करें, मैं यहाँ पे ना, मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? वैसे भी टोपोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप नहीं कनेक्ट करने वाला हूँ। मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक राउटर एक्सेस करूंगा और हमने स्टैटिक पैड के बारे में भी डिस्कस करना है। स्टैटिक पैड के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो टोपोलॉजी में वैसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं टोपोलॉजी चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे एक और राउटर अटैच कर रहा हूँ एंड वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज आवर सर्वर। Change symbol. This is our server and I'm going to change its host name. It's server 1. ये हमारे पास में server 1 है, ठीक है। And we will configure IP address on this interface 192.168.1.11. Gateway will be gateway is 192.168.1.100 and IP address of DNS server is 8.8.8, ठीक है। तो मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले स्टैटिक पैड देख लेते हैं। पैड से क्या मतलब है? स्टैटिक पैड से। देन इसके बाद में स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक नेट देख लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग से नो IP राउटिंग
I'm going to disable routing on this device. Okay. After that, on interface Ethernet 1/0, IP address is 192.168.1.11, 255.255.255.0. Say no. Shut down. IP default gateway is 192.168.1.100. IP name server, say IP name server is 8.8.8.8. ये हमारा नेम सर्वर है, DNS सर्वर है. हमने इसको एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा दी. शो IP इंटरफेस ब्रीफ. एक बार IP चेक कर लो. 11 चेक कर लें, ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं 1.1.1 से. क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है? अभी फिलहाल हमने यहाँ पे कोई नेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करी है ना. तो मैं यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर कर दूँ. फिलहाल मैं पैड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फिर से. IP नेट इनसाइड, पहले वो वाली एंट्री हटानी पड़ेगी. IP नेट इनसाइड सोर्स, जो लिस्ट किस में हो 10 में, इसको ट्रांसलेट कर दे किस में, इंटरफेस ईथरनेट 1/0 में. एंड ओवरलोड कीवर्ड यूज कर रहा हूँ. शो एक्सेस लिस्ट में कौन है, इनको ट्रांसलेट करता रहेगा और ये कम्युनिकेट करता रहेगा इंटरनेट से. दिखा देता हूँ, मैं पिंग करता हूँ 1.1.1 से. कम्युनिकेट कर रहा है ये इंटरनेट से. ये लैन यूजर, ये राउटर जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है. 1.1.1.1 को कम्युनिकेट कर पा रहा है. और हमने यहाँ पे पैड कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना. नाउ व्हाट वी वांट टू एक्सेस, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर विच सर्वर. वी हैव इनेबल्ड telnet service on this server and we want to access this server with using telnet from internet, and IP address is what, 192.168.1.11 है ना. देखो नॉर्मली इस प्राइवेट IP एड्रेस को आप बाहर से इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाओगे अगर पैड कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो. इफ यू हैव कॉन्फ़िगर पैड सर्विस on your edge router, you cannot access your this private IP address from internet. You cannot communicate. But what we can do, we can use static pad to access a particular service of this server. अगर इस सर्वर की कोई पर्टिकुलर सर्विस एक्सेस करनी है तो हम लोग पैड कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये चीज? ट्रांसलेशन का तरीका अलग है इसलिए. हाँ, क्योंकि वहां पे वो ट्रांसलेशन टेबल में पोर्ट नंबर मेंशन कर रहा था. बाहर से कम्युनिकेट करोगे तो पोर्ट नंबर वहां पे होगा नहीं. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पैड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. कौन सा? स्टैटिक पैड. अब हम लोग स्टैटिक पोर्ट की भी एंट्री बनाएंगे यहाँ पे. टेबल में अगर पहले से एंट्री पड़ी होगी तो बाहर से कम्युनिकेशन हो जाएगा ना. समझ में आ रही है बात? ये देखो मैं पहले उस एंट्री को हटा रहा हूं. देखो हम लोग बाहर से इंटरनेट से अपने इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क में क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे जब यहाँ पे पैड कॉन्फ़िगर्ड था? बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल में कोई एंट्री होती नहीं. अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक पैड कॉन्फ़िगर करेंगे. हम लोग स्टैटिकली पोर्ट की एंट्रीज बनाएंगे. किसमें? एज राउटर पे. कैसे कॉन्फ़िगर करोगे वो देखो. एज राउटर पे आ जाओ. पहले मैं यहाँ पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दूं इस पे सर्वर पे. लाइन स्पेस पासवर्ड लॉगिन. टेलनेट की सर्विस इनेबल्ड है. अभी फिलहाल आप यहां से ISP से टेलनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे. उसको टेलनेट नहीं कर पा रहे होगे आप. दिखा देता हूं. टेलनेट 192.168.1.11 को टेलनेट नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि ये ट्रांसलेशन कर ही नहीं रहा है. नाउ व्हाट वी विल डू, now I am going to configure static pad on this edge router.
देखो यार यहाँ पे ना प्रॉब्लम ना आ जाए, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं टोपोलॉजी चेंज कर लूँगा यहाँ पे, या फिर एज राउटर को रिस्टार्ट कर लेंगे एक बार। आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, हो जाना चाहिए था स्टैटिक नेट हमारा उसमें। मैं IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक किसके लिए इनेबल करना है? पोर्ट नंबर 23 के लिए ना, टेलनेट एक्सेस करना है तो TCP यूज कर रहा है ना वो। सोर्स IP एड्रेस क्या हो जब 192.168.1.11, इसको किस में ट्रांसलेट कर दे? इसके कौन से पोर्ट नंबर में ट्रांसलेट कर दे? 23 में। और ग्लोबल आपका IP कौन सा रहेगा? 15.1.1.1 और पोर्ट नंबर इज 23। पोर्ट नंबर इज 23। और एक मिनट रुक जाओ। IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक TCP 192.168.1.11 23 इंटरफेस 15.1.1.1 में खाली आप यहाँ पे एंटर भी प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है फाइन। अब देखो यार, अब मैं ISP पे चलता हूँ। आई वॉन्ट टू टेलनेट टू 15.1.1.1 और है टेलनेट। पासवर्ड क्या था उसका? सिस्को। कौन एक्सेस हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इसमें पहले से ही क्या पड़ी है? एक IP नेट ट्रांसलेशन, एक पहले से ही एक स्टैटिक एंट्री पड़ी है। ये क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट क्या दी थी हमने? स्टेटमेंट क्या थी उसको समझ लो। डू शो रन पाइप सेक्शन IP नेट। देखो क्या हो रहा है। इट विल ट्रांसलेट IP पैकेट। जब पैकेट किस इंटरफेस पे हिट करेगा? इनसाइड इंटरफेस पे। विच IP एड्रेस इट विल ट्रांसलेट? सोर्स IP एड्रेस। और सोर्स IP एड्रेस क्या है? जब ये है सोर्स IP एड्रेस क्या है हमारा? 192.168.1.11 है। उसको किस IP में ट्रांसलेट कर दे? इस IP में ट्रांसलेट कर दे। ट्रांसलेट कर देगा सोर्स IP, है ना। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या था? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। whenever you will telnet from here to here, your destination port number will be 23 ना। अब देखो वापसी में जब पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगा तो IP एड्रेस कौन सा ट्रांसलेट होगा? डेस्टिनेशन। तो आप जब यहां से टेलनेट कर रहे हो, किसको कर रहे हो? 15.1.1.1 को। Destination IP is 15.1.1.1. Source IP is, let's suppose, 1.1.1.1. Destination port number is what? 23. And source port number is any random port number. और जैसे ये पैकेट इस आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा, आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करते ही IP कौन सा ट्रांसलेट होगा? 192.168.11 में कर देगा, इसमें ट्रांसलेट कर देगा। जब ये IP लग के आ रहा है, इसको किस IP में ट्रांसलेट कर देगा? इस IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा। एंड पोर्ट नंबर विल बी 23। पोर्ट नंबर विल बी 23, सेम ही रहेगा। 23 आ रहा है और 23 में ही क्या कर देगा? उसको ट्रांसलेट रखेगा वो, और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बाहर से इसको क्या कर सकते हो? टेलनेट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये आपका स्टैटिक पैड। समझ में आ रही है बात? अरे ये पढ़ा होगा ना, कोई बात नहीं। ये देखो, ओके। अब कई बार क्या होता है, सी 23 नंबर पोर्ट यहां पे क्या है? ओपन है। 23 पोर्ट नंबर ओपन है, तो इस सर्वर पे कोई अटैक भी तो कर सकता है, डोस अटैक भी तो कर सकता है पोर्ट नंबर 23 पे। 23 नंबर पोर्ट यहां पे क्या है? ओपन है। तो अब हम लोग ना
किसी को भी 23 नंबर पोर्ट असाइन नहीं करवाएंगे। बाहर से कोई भी लैन यूजर, बाहर से कोई भी इसको टेलनेट करेगा तो पोर्ट नंबर 23 से टेलनेट नहीं करेगा। हमने इसको एक पोर्ट नंबर क्या असाइन करवा रखा है, उसको हमने उसको क्या बोला हुआ है, यहां पे कोई लैन यूजर है एंड दिस लैन यूजर वांट टू टेलनेट दिस सर्वर विद यूजिंग पोर्ट नंबर। अगर 23 यूज करेगा तो इस आईएसपी लेवल, आईएसपी से पैकेट जा रहा होगा, इस पैकेट को कोई भी कैप्चर करेगा तो उसको पोर्ट नंबर मिलेगा 23 है, तो कोई भी अटैक कर सकता है ना, डोस अटैक। क्या? हाँ, सिक्योर सेल यूज कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं टेलनेट की, ठीक है। आप पोर्ट नंबर टेलनेट के लिए भी चेंज कर सकते हैं, इवन आप वेब सर्विसेज के लिए भी चेंज कर सकते हैं। वेब सर्वर पे आ जाऊंगा मैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जब भी यूजर इसको टेलनेट करेगा तो टेलनेट करते टाइम 23 पोर्ट नंबर से टेलनेट ना करे। ये जब भी पोर्ट नंबर टेलनेट करे, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजे, लेट्स सपोज 8008 से टेलनेट करे, 8008 से टेलनेट करे। तो जब भी आप यहां से इसको टेलनेट करोगे तो डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, 15.1.1.1। सोर्स आईपी एड्रेस विल बी लेट्स सपोज 1.1.1.1। सोर्स पोर्ट नंबर विल, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी, and destination source port number will be, this is our destination port number and source port number will be a random port number। ये लगा के भेजेगा, पैकेट आएगा किसके पास में, इसके पास में, और ये इस आईपी को किस में ट्रांसलेट कर देगा, 192.168.1.11 में ट्रांसलेट कर देगा। और पोर्ट नंबर अगर अभी भी 8008 रहा तो ये ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देगा, इसकी तरफ भेज देगा। और यहाँ पे 8008 पोर्ट नंबर ओपन होगा क्या, 8008 नंबर पोर्ट तो ओपन होगा ही नहीं, तो पैकेट यहाँ पे क्या आके क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ना, डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ये पैकेट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ड्रॉप। क्योंकि यहाँ पे टेलनेट की सर्विस, पहली बात तो ये 8008 नंबर पोर्ट ओपन यूज कर नहीं रहा है, टेलनेट क्या यूज कर रहा है, 23। अगर यहाँ पे 8008 पोर्ट ओपन भी होगा तो वो कोई और सर्विस यूज कर रही होगी ना, टेलनेट का तो पोर्ट नंबर क्या होता है, 23। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब भी पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, 8008 लग के आ रहा है, उसको ट्रांसलेट कर दे किसमें, 23 में। तो बाहर से मेरे लैन यूजर जब भी टेलनेट करेंगे, पोर्ट नंबर किससे टेलनेट करेंगे, 8008 से। डेस्टिनेशन आईपी विल बी 15.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 8008। और जैसे ही इस एज राउटर पे पैकेट आएगा, नाउ एज राउटर विल ट्रांसलेट योर destination IP address into 192.168.1.11 and destination port number into 23. If destination port number is this, then it will translate this destination port number into 23. तो इस तरह से अगर आपने डोस अटैक वगैरह से बचना है तो हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर भी क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक पैड में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लें। देखो अभी आपने यहां से जब उसको टेलनेट किया था, बाय डिफॉल्ट see you are on ISP router and you want to telnet 15.1.1.1, your destination port number will be what, it will be always 23। पैकेट कैप्चर करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये देखो मैं ISP राउटर पे गया और मैंने टेलनेट बोला, इसको पासवर्ड इज सिस्को, सर्वर एक्सेस हो गया ना, ये रहा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज व्हाट, 23 लग के जा रहा है ना, बट हमने इस बार क्या करना है, मैं टेलनेट कर रहा हूं दोबारा, आई एम सेइंग टेलनेट 15.1.1.1 एंड पोर्ट नंबर इज, यू कैन मैन्युअली मेंशन योर पोर्ट नंबर आल्सो, सी पोर्ट नंबर, आई एम सेइंग पोर्ट नंबर इज 8008। एक्सेस हुआ यहां तक ट्रैफिक, अब पैकेट फ्लो क्या रहेगा, वही सेम, पोर्ट नंबर तो ट्रांसलेट होगा ही नहीं तुम्हारा। अब पोर्ट नंबर नहीं ट्रांसलेट होगा तो यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, यहाँ पे पोर्ट नंबर ओपन है ही नहीं। और ये देख लो इस पैकेट के अंदर उसने पोर्ट नंबर वही लगा के भेजा होगा। कहां पे गई है रिक्वेस्ट, ये वाली है, ये वाली पहले वाली है, आई थिंक ये वाली रिक्वेस्ट है। पोर्ट नंबर इज 8008
और इसने जब पैकेट इनकैप्सुलेट किया लैन यूजर ने, आईएसपी से जब पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ, आप किसको एक्सेस कर रहे हैं 15.1.1.1 को, सोर्स आईपी क्या रहेगा जब आप गूगल सर्वर से उसको टेलनेट करोगे ना, और यहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 8008 एंड सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम पोर्ट, और जैसे ही पैकेट आएगा वो यहां पे एंट्री चेक करेगा ना एज राउटर, तो इट विल कन्वर्ट, इफ योर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 23 देन इट विल कन्वर्ट दिस पोर्ट इनटू अगेन 23, बट 23 तो लग के आ ही नहीं रहे, जो 23 में वापस से ट्रांसलेट कर दे वो क्या लग के आ रहा है 8008 आ रहा है, तो उसको तो ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, पोर्ट नंबर तो वही होगा सेम, तो यहां पे आके पैकेट क्या हो जाएगा तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। तो अब मैं जो नेट स्टेटमेंट है उसको चेंज कर रहा हूं, नाउ मैं अब इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, अब कोई एंट्री नहीं है ना यहां पे। नाउ व्हाट वी विल से आईपी नेट इनसाइड, जब भी पैकेट इनसाइड इंटरफेस पे आए, सोर्स इज स्टैटिक, और सोर्स आईपी जब क्या लग के आए, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा हो टीसीपी, और सोर्स आईपी जब क्या लग के आ रहा हो 192.168.1.11, और सोर्स पोर्ट नंबर हमारा क्या हो यहां से बता रहा हूं मैं, अगर लैन यूजर ने बाहर कम्युनिकेट करना है 23 हो, इसको किस में ट्रांसलेट कर दे 15.1.1.1 में, और पोर्ट नंबर 8008 में, ये हमारे क्या है सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट नंबर। जब पैकेट रिसीव होगा तो डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट करेगा, तो इस आईपी को डेस्टिनेशन आईपी जब इस इंटरफेस पे आएगा पैकेट तुम्हारा इस इंटरफेस पे, तो क्या होगा इस इंटरफेस पे जैसे ही आएगा तो ये डेस्टिनेशन आईपी को और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को किस में ट्रांसलेट कर देगा इस डेस्टिनेशन आईपी में और इस डेस्टिनेशन पोर्ट में, और जब पैकेट इन इंटरफेसेस पे रिसीव होगा तो क्या करेगा वो इस आईपी एड्रेस को और इस पोर्ट नंबर को ट्रांसलेट कर देगा किसमें इसमें। और अभी तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, अब मैं चलता हूं आईएसपी राउटर पे, और अब मैं टेलनेट दोबारा करता हूं किससे 15.1.1.1 से, एंड पोर्ट नंबर इज इस केस में तो जो एडमिन होगा उसको हर पोर्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। जो भी बाहर से एक्सेस कर रहे हैं उनको मैन्युअली पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा, अदरवाइज अगर उनको पोर्ट नंबर नहीं पता तो वो सर्विस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरे पास में अगर मेरा कोई पब्लिक आईपी भी है, मेरा लैन यूजर है, इसको बाहर से कोई भी एक्सेस करना चाह रहा है, तो अब जब तक उनको नहीं पता होगा सामने वाले को कि इस पे कौन सा पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, तब तक वो इसकी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अभी समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ पे टेलनेट सेम यूज कर लूंगा पोर्ट नंबर, फिर तो दिक्कत है ना, कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करवा सकता हूँ। अभी सिर्फ कौन एक्सेस कर पाएगा इसको, जिसको हमारा पोर्ट नंबर पता है, कौन सा 8008, वो पोर्ट नंबर से एक्सेस करना पड़ेगा। और ऐसे ही आप वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस पे एक वेब सर्विस भी इंस्टॉल कर दूं। मैं इस पे इंस्टॉल कर रहा हूं क्या, आईपी एचटीटीपी सर्वर, और अब इस सर्वर को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो ना। अब मुझे एक फिर से सर्वर लगाना पड़ेगा यार, सर्वर लगाना पड़ेगा। अब देखो मैंने यहां पे सर्विस इनेबल कर दी, इस पे पोर्ट नंबर कौन सा ओपन हो चुका है 80। अब बाहर से जो भी एक्सेस करेगा वो 80 नंबर पोर्ट से एक्सेस करेगा ना, बट 80 नंबर पोर्ट से एक्सेस करेगा तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब इसी तरह की एक स्टेटमेंट देंगे इसको,
क्या क्या स्टेटमेंट देंगे इस वाले इंटरफेस पे? आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ये जब आईपी हो और पोर्ट नंबर इज 80 और इसको ट्रांसलेट कर दे किसमें? पोर्ट नंबर 8080 में मैं बोल दूं। तो अब बाहर से जो भी लैन यूजर है, लेट्स सपोज ये मेरा बाहर इंटरनेट का लैन यूजर है, वो जब भी एक्सेस करेगा ना उसकी वेबसाइट http://192.168.1. जो भी उसका आईपी है और कोलन 8080। जैसे अब एंटर प्रेस करेगा, अब ये क्या भेजेगा? वेबसाइट एक्सेस करने के लिए बाहर से ये लैन यूजर क्या भेजेगा? इसको रिक्वेस्ट भेजेगा ना। तो कैसे भेजेगा रिक्वेस्ट? ओ सॉरी, यहां पे आपको आईपी क्या रखना था? http://15.1.1.1 रखना था ना, कोलन 8080 कोलन 8080। और ये क्या भेजेगा? इसको एक गेट मैसेज भेजेगा। देखो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी नाउ, मैं 8080 से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम पोर्ट। सोर्स आईपी एड्रेस इज लेट्स सपोज 1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 15.1.1.1। इसी को तो आपने एक्सेस करना है। इस तरह का मैसेज इनकैप्सुलेट होगा ना जब आपने यहां से कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप यहां पे 8080 नहीं बोलते हो तो बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करते हो तो पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रिक्वेस्ट लेके जाता है? 80 नंबर पोर्ट। एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग पोर्ट नंबर 8080। तो जैसे ये रिक्वेस्ट आएगी यहां पे, अब पैकेट किस इंटरफेस पे हिट कर रहा है? आउटसाइड इंटरफेस पे। अब आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा तो आईपी कौन सा ट्रांसलेट होगा? डेस्टिनेशन आईपी। तो अगर ये आईपी लग के आ रहा है, इसको किस में ट्रांसलेट कर दे? इस आईपी में। तो यहां पे क्या कर देगा ये? 192.168.1.11। और पोर्ट नंबर अगर ये लग के आ रहा है डेस्टिनेशन, इसको किस में ट्रांसलेट कर दे? पोर्ट नंबर 80 में। और अब पैकेट भेज देगा किसकी तरफ? 192.168.1.11 की तरफ। और इसके पास में जैसे ही आएगा डेटा, वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इसका खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, देन ओपन करेगा लेयर 4 हेडर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 80। और यहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 क्या होगा? ओपन। कौन यूज कर रहा है? वेब सर्वर। और ये वेबसाइट क्या करवा देगा? एक्सेस करवा देगा। और जैसे ही वापसी में जब डेटा जाएगा, अब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के जा रहा होगा? सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग के जा रहा होगा? यानी रैंडम पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा? समझ में आ रही है ना बात? तो इसी तरह से क्या करेगा वो? सारा का सारा चेंज करता रहेगा ट्रांसलेशन वापसी में भी। तो आप इस तरह से ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टैटिक पैड। स्टैटिक पैड में अगर आपने पोर्ट ट्रांसलेट करवाने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जो सर्वर है उस पे पोर्ट नंबर क्या है? वेल नोन पोर्ट नंबर है, बट जो बाहर इंटरनेट पे जो यूजर बैठे हैं, आप नहीं चाहते वो आपके वेल नोन पोर्ट नंबर से ही क्या करे? आपको एक्सेस करे, आपकी वेबसाइट एक्सेस करे। क्योंकि अगर वेल नोन पोर्ट नंबर आप अगर यहां पे एक्सेस दे दोगे वेल नोन पोर्ट नंबर का, तो कोई भी उस पे डोस अटैक कर सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेंगे वहां पे और उन लैन यूजर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। और वो लैन यूजर जब भी हमें एक्सेस करेंगे उस रैंडम पोर्ट नंबर से एक्सेस करेंगे। और ये यहाँ पे नेट क्या करेगा? उसको वेल नोन पोर्ट नंबर में क्या करता रहेगा? ट्रांसलेट करता रहेगा। हाँ जी। तो इस स्टैटिक नेट